Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is our sixth lecture and today we will discuss int words. Look at this statement. Read and match int words. Firstly, you will mention the date like April 28, 2020. Students, like previous lecture, firstly we can see there here three pictures with words. The first word is blinds, second word kind, and third word is behind. In the first word, the use of uh, um, in sound in the mid of the word. Look at the second word. The word is kind. Okay, in this picture, the girl's behavior shows toward animal. Okay, the first word behind. Look at the arrow. This picture shows the word behind. स्टूडेंट्स बिहाइंड का मीन होता है पीछे, तो ये डोर है, ये उसके पीछे ये डॉग है, तो ये इसलिए ये वर्ड जो है एरो के साथ यहाँ शो किया गया है कि ये डॉग जो है वो डोर के बिहाइंड में है, यानी कि पीछे है डोर के. ठीक है. सिमिलरली there we have some words. First word blind, find, bind, mind, grind. Come to the first activity. In this activity, students, you will match the same words like previous lecture. For example, look at the example. Blind. The word blind is matched to the same word blind. You will match the word kind is to the same word kind. Then the word is blind, so you will match the same word blind. You will match the word blind is to the same word blind, and then the word behind you will match this word is to the same word behind. Okay, both the blocks having same structure. Come to the next page. This is very interesting activity. Look at this statement. Make and write in words. In this activity, students, you will match. You will combine the word. Then you will make a meaningful word and write here twice. Okay. For example, the sound. Students, you will combine the sound with the in sound. Then the word became find, like oof in find. So you will write the word find here twice in this given blocks. Students, now we have combined and wrote the word, like the first word find, then you will wrote the word bind, then kind, blind, and grind. Students, you will read the everyone twice in this given blocks. Okay, come to the last activity. Look at this statement. Use int words to answer the riddles. Okay. First statement is a person who cannot see. इसका मीन अब मैं आपको बताऊं कि वो पर्सन जो कि नहीं देख सकता. ठीक है. इसकी जो स्टेटमेंट है मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में, ताकि बेटा आप लोगों को इसकी क्लियरली इसका समझ आ सके कि ये स्टेटमेंट आखिर है क्या. ठीक है. तो आपने चूज़ करना है ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से. ओके. द फर्स्ट वर्ड इज ब्लाइंड, बाइंड, काइंड, बिहाइंड एंड माइंड. ये हमारे पास 5 वर्ड्स हैं. इनमें से आप लोग ने इसका जो एग्जैक्ट मीनिंगफुल वर्ड है
वो उसके अंदर जो मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, एक ऐसे इंसान जो कि देख नहीं सकता, ठीक है। अब सूटेबल वर्ड आप बेटा इसमें से चूज़ करेंगे और वहाँ आपने राइट करना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट वर्ड था ब्लाइंड। ब्लाइंड बेटा कहते हैं अंधे शख्स को, ठीक है। तो सूटेबल वर्ड हमारे लिए यही है। सो हम ये वर्ड जो है ब्लाइंड वहाँ हमने राइट कर देना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाली है बेटा ये हो जाएगी कि एक पर्सन जो नहीं देख सकता वो है ब्लाइंड। ब्लाइंड कहते हैं अंधे को जिसे नज़र नहीं आता, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी हमने इसी तरह देखे सॉल्व की। अ पर्सन हु इज़ गुड टू अदर, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों के साथ अच्छा हो। तो हमने यहाँ वर्ड राइट किया काइंड। काइंड का मीन होता है मेहरबान, ठीक है। ये जो वर्ड स्टेटमेंट थी कि एक इंसान जो दूसरों के साथ अच्छा हो, ठीक है। अदर्स मीन दूसरे, जो उससे रेलिवेंट लोग हैं उसके साथ उसका शख्स का बिहेवियर अच्छा हो तो वो होता है मेहरबान, काइंड, ठीक है, रहमदिल। अब थर्ड स्टेटमेंट देखें, व्हेन समथिंग इज़ नॉट इन फ्रंट, जब कुछ कोई चीज़ जो है वो फ्रंट पे ना हो, मतलब हमारे सामने ना हो, तो हम वो क्या होगी, बिहाइंड, पीछे होगी, ठीक है। कोई चीज़ जब हमें अपने सामने नज़र नहीं आ रही, मंजर पे नहीं है, तो वो बिहाइंड, फिर वो हम कहते हैं कि सामने नहीं है तो वो फिर बिहाइंड है, ठीक है, पीछे है। अब फोर्थ वाली स्टेटमेंट है, वो यूज़ इट टू थिंक विद, हम क्या चीज़ सोचने के लिए क्या चीज़ को इस्तेमाल में लाते हैं बेटा, वो हमारा माइंड है, दिमाग, ठीक है। वी यूज़ इट, इट का मीन यहाँ शो किया गया है, ये मतलब कि ये माइंड को कहा गया है, हमारे दिमाग को। वी यूज़ इट, हमें इसे यूज़ करते हैं टू थिंक विद, ठीक है। जब हम सोचते हैं, तो किसी चीज़ के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, सोचते हैं तो हम ये माइंड, दिमाग के साथ सोचते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट देखें, टू होल्ड द पेजेस ऑफ अ बुक टुगेदर, बुक के जो पेजेस हैं सारे उनको इकट्ठा करना, उनको मतलब कि कंबाइन कर लेना, ठीक है, सॉरी बाइंड कर लेना। इट मीन्स के बुक के काफ़ी सारे पेजेस हों, जब हम उसे एक शेप में, पेजेस को शेप में लाते हैं तो हम उन्हें बाइंड करके एक बुक की शेप देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ वर्ड लिखेंगे बाइंड। बाइंड का मतलब इकट्ठा करना होता है, ठीक है। पेरेंट्स, आज का जो हमारा लेसन था वो कंप्लीट हो चुका। हर चीज़ को डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया। आपने बच्चों को यहाँ 2-3 चीज़ों के बारे में बताना है, ख़ास तौर पे इनको गाइड करना है कि यहाँ ये जो गर्ल है इसका एनिमल के साथ जो है एटीट्यूड शो किया गया है, बिहेवियर शो किया गया है कि वो काइंड है, मेहरबान है, ठीक है, एनिमल के साथ। और ये जो डोर है उसके पीछे ये डॉग नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और एरो के साथ इसको दिखाया गया, शो किया गया है कि बिहाइंड जो है, इसके डोर के बिहाइंड है, डोर के पीछे है, ठीक है। तो आपने ये थोड़े से ही वर्ड हैं, बच्चे को 5 और 6 वर्ड की आपने प्रैक्टिस करवानी है रफ नोटबुक पे। उसके बाद आपने इनकी नीटनेस का मतलब कि राइटिंग जो है उसका ध्यान रखना है कि बच्चा नीट राइट करे। और लास्ट वाली जो एक्टिविटी है इसमें आपने जिस तरह मैंने बच्चों को मतलब कि उर्दू में ट्रांसलेट करके समझाया है, हर वर्ड का मीन बता दिया है, तो आपने इसी तरह बच्चे को अगर फिर भी वो नहीं समझ आ रही उसे, तो आपने उसे बार बार उस चीज़ को समझाना है। थैंक यू।